Just take a look at those pictures, because this talks of a bigger story. This talks of negligence. This talks of lessons that have not been learned. This talks of how one incident after the other happens, but there is clearly no value for life. There is clearly no value for the fact that people are lost to such incidents. And it could be anyone. It could be you, me, or your loved ones, anyone, that this incident could happen of, unfortunately, the killer apathy that has been reported in Delhi. And you see how the bike right inside that pit, fallen deep, a pit so deep that was apparently dug for repair work to happen that the Delhi Jal Board was carrying out. But such was the negligence. There is no barricading around. There is absolutely no warning sign. And the man who had gone for his work to come back to his family, he was in touch with his family, he was talking to them, but he was coming back in the night from work to go to his house, could not make it back. Why? Because of this negligence. Who is to blame? Of course, investigation that will reveal all the details. The family that is pointing fingers straight up at the Delhi Jal Board, asking them to give answers. Why such negligence that has led to this loss of life? In the daytime, it is still easier to be able to identify such repair work that is happening. But what about those who are plying on such roads at night? Why is it that due procedure is not followed? Why is it that when a pit that has been dug so deep, and how many workers may have been working on this very site to be able to fix the pipelines, to be able to fix that entire place, but did not bother to follow the very basics of barricading this area, of putting out the warning sign. And we cut across to more breaking news coming in. The Aam Aadmi Party has now hit out at the Delhi government, saying at home his mother was waiting for her son to return. Little did she know that a negligent government had taken her son's life. They've also gone on to say that a son died after falling into this pothole on the road in Janakpuri. The system under the BJP's rule had already collapsed. This was not an accident. It is proof of the BJP's incompetence. A straight up attack by the Aam Aadmi Party, blaming the BJP in Delhi for this killer negligence. Let me take this to my colleague Himanshu, now joining us on the broadcast. Himanshu, ये पहला रिस्पॉन्स है आम आदमी पार्टी से, और सीधे तौर पर वो बीजेपी को, दिल्ली सरकार को ब्लेम कर रहे हैं इस एपैथी के लिए। देखिए, क्योंकि जो गड्ढा था, जिस तरीके से वो सिविक एजेंसी का, सीधे तौर पर सिविक एजेंसी की यहाँ पर गलती नजर आ रही है। क्योंकि अगर इस तरीके से, खास तौर से आप देखिए, सड़क के किनारे इतना बड़ा गड्ढा कर देना, और जैसा आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि अभी इसकी जांच है कि किसी तरीके का कोई साइन बोर्ड या कोई वहां पर इस तरीके का निशान या बोर्ड मौजूद नहीं था जिससे ये पता लग सके कि वहां पर आगे गड्ढा है। तो ये सीधे तौर पर इसमें ये देखना होगा कि किस किस लेवल पे लापरवाही हुई है। नंबर एक, कि जो गड्ढा था उसके आसपास क्या सच में कोई भी वो नहीं है। Details, Himanshu, we continue to wait to hear from you. In the meantime, the picture of the victim on our screens right now, so unfortunate. A young boy, a hard-working boy, was going back to his family after completing his work. Little did he know what waited for him. It was that killer manhole, a pit that had been dug by the Delhi Jal Board workers who were doing their work there. But little did he understand and drove right into it, because there was no warning sign, there was no barricading. Just take a look at that pit that has been dug by the Delhi Jal Board, and the picture of the victim, the first picture of the victim who unfortunately lost his life. में एजेंसी की लापरवाही बनी जानलेवा। जनकपुर इलाके में जल बोर्ड
का काम चल रहा था और उसी दौरान बड़ा गड्ढा किया गया था और उस गड्ढे में बीती रात एक युवक बाइक सहित उस गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, यही वो गड्ढा है जिसकी मैं आकलन बताऊं आपको तो लगभग ये लग रहा है कि 20-22 फुट लंबा है और लगभग 15 फुट ये चौड़ा है। इसी गड्ढे में बाइक सवार गिरा हुआ था, वो बाइक के नीचे पड़ा हुआ था। जो जानकारी मिली है, उनके परिवार वालों से बात हुई है, कमल नाम था और ये रोहिणी में प्राइवेट जॉब करते थे, वहां से रात को लौट रहे थे। लेकिन इसकी घर वालों से लगातार बात हो रही थी, लेकिन जब ये घर नहीं पहुंचे तो घर वाले रात को ही इसको कमल को ढूंढने निकले और परिजनों का ये कहना है कि वो जनकपुरी, डाबरी, सागरपुर सहित लगभग आधा दर्जन थानों के चक्कर लगाए, पुलिस वालों से गुहार लगाई, उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करके उसका पता लगाया जाए कि उसका भाई कहाँ है। लेकिन परिवार वालों का यह आरोप है कि पुलिस की तरफ से वो सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है उनके भाई की जान चली गई। सुबह 7:30 बजे के करीब पुलिस वालों का फोन आया कि उनकी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, आपको दिखा सकता हूं कि देखिए पुलिस की तमाम टीम, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। एसडीएम आए थे, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद पहुंचे थे और यहाँ पर मुआयना किया था। साथ ही मंत्री आशीष सूद ने जांच कमेटी की भी बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस मामले में जल बोर्ड या किसी भी एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। मौके पर देखिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंची हुई है, एडिशनल डीसीपी है और यहाँ आकर मुआयना कर रही है और तमाम आला अधिकारी आप देख सकते हैं। डीसीपी वेस्ट जिले के डीसीपी भी मौके पर आ चुके हैं और उसी गड्ढे के पास यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, थाने के जो एसएचओ हैं उनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, जिसमें एक युवक की जान चली गई। आप देख सकते हैं मौके पर डीसीपी और जिले के तमाम अधिकारी जो हैं और दूसरी तरफ देखिए ये गड्ढा, यही वो गड्ढा है जिसमें बाइक सवार के गिरने से मौत हुई। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाया है कि एजेंसी की लापरवाही के कारण जो है इतना बड़ा हादसा हुआ और पुलिस वालों का अगर सहयोग होता तो उनके जो भाई हैं उनकी जान जो है सो बच जाती। लेकिन पुलिस वालों ने लगभग आधे दर्जन थानों का उन्होंने चक्कर लगाया, पुलिस वालों से गुहार लगाई कि मोबाइल लोकेशन पता कर उनके भाई को ट्रेस किया जाए, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस वालों की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण जो है उनके भाई की जान चली गई। आप देख सकते हैं कि यही वो सड़क है और ये सड़क जो है सो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ से जनकपुरी के दूसरे इलाकों को जोड़ती है और यहाँ पिछले काफी समय से जल बोर्ड का काम चल रहा है और एक ही सड़क से जो है सो दोनों तरफ का ट्रैफिक ये देखिए यहाँ से जाता आता है। इसी सड़क का इस्तेमाल, जो एक संभावना ये जताई जा रही है कि इसी सड़क से वो आ रहे होंगे और क्योंकि यहाँ पर कोई घेराबंदी नहीं रही होगी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और हादसे में जान चली गई। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये हादसा है या कुछ और। मनोरंजन कुमार। And remember, the investigation is underway to put out the exact details of what really happened, what led to such killer negligence. Prima facie, it does appear that there was no warning sign that may have misled the biker. Let's once again listen into what Delhi Minister Ashish Sood had to say. मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।